what it is that we are tracking. At least 4 people have been killed, over a dozen have been injured in serial blasts that hit civil courts in Varanasi, Faizabad and Lucknow today. While 4 people were killed in the Faizabad blast, several people were injured in the Varanasi blasts, and based on the pictures that we see over here, there is every possibility of there having been people who lost their lives in Varanasi. In Lucknow, the blast took place when a bomb kept in a cycle reportedly exploded. Sources have said, and I am quoting the Press Trust of India here, that the intensity of the blast in Lucknow was not of a high magnitude. Bomb disposal squads have been pressed into service in the 3 districts. They are conducting extensive searches of the court premises. Well, earlier on we did get some reactions from senior police officials. This was A.K. Jain, the Inspector General of Police in Lucknow. I have just received information from Lucknow that there has been a blast in civil courts, but I have been told by SSP Lucknow that no one has been injured. Police force has reached the spot. I am also rushing to the place, and once I reach the place, only then I can give you the details. Mr. Jain, can you also tell us, so far from the reports that you're getting, exactly how bad was the blast? I mean, exactly which areas did it hit and how bad was it? It's not a very powerful blast as far as I know about the Lucknow thing. वो जैसे traditional sutli का बम होता है, that sort of thing is there. Let me reach the spot, only then I can give you the important details about it. Huh? Right. Mr. Jain, did you have any information possibly about something like this occurring, any kinds of threats? No, we don't have any such information or input. And are there any groups, any particular, particular suspects that you would be looking at this stage? I won't be able to comment at this stage. All right, that was the Inspector General of Police in Lucknow speaking to us just a little while earlier. We are joined on the phone line by NDTV's Sunil Prabhu. Sunil, as I come to you, I just want to remind our viewers of some of the other points made by the Minister of State for Home, Sri Prakash Jaiswal, indicating that terrorists and those institutions, bodies, countries, call it what you like, those who are targeting India are jealous of us, of our growth. They are conspiring against us, says Sri Prakash Jaiswal. We'll give them a reply by strengthening our brotherhood, our unity, and that common people should stick together. Any other information, Sunil, coming from the Home Ministry at this stage? The Home Ministry has clarified the fact that it was almost coordinated attack, clearly implies in no uncertain terms that this was a terror strike. They are viewing this as a terror strike in the... प्राप्त हुई है कि बनारस, फैजाबाद और लखनऊ 3 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए हैं। ये भी सूचना है कि शायद फैजाबाद में 2 ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है, कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है, लेकिन किस बम ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी 1 घंटे 8 घंटे के बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि ये ब्लास्ट अभी आधे पौने घंटे पहले ही हुआ। इसलिए पुख्ता जानकारी आने के बाद आपको बाकी डिटेल। आतंकवादी हमला ब्लास्ट हुए हैं कि आपको लगता नहीं कि आतंकवादियों का हमला? देखिए, एक साथ एक समय पर 3 शहरों में हमले हों, बम ब्लास्ट हों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये साजिश सुनियोजित है। किस संगठन ने किया है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोटिव भी साफ हो सकता है। मोटिव केवल इतना हो सकता है कि हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए, लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। मेरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता से यही अपील है कि इस तरीके की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब केवल इसी तरह से दिया जा सकता है कि साजिश करने वाले जो भी साजिश कर रहे हों, देश की जनता को पूरी तरीके से संगठित और एकता के सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता है। यही उनके लिए मुंहतोड़ जवाब। सर, ये पहला मौका है कि इसमें तो पहली बार जुडिशरी को एक अटैक किया गया, तरीके से अटैक किया। इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। जुडिशरी के परिसर के अंदर कोई न कोई स्थान ऐसा चुना जाता है जहां भीड़ भाड़ हो। जुडिशरी हमारे यहाँ की कोर्ट्स में भी
हजारों की भीड़ होती है। तो भीड़ भाड़ा स्थान चुनने के लिए हो सकता है साजिश करने वालों ने ये साजिश की हो कि कोर्ट को निशाना बनाया जाए जिसपे हजारों की भीड़ होती है। सर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो इसी महीने की 16 तारीख को आप लोगों ने एक मॉड्यूल पकड़ा था, 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, क्या उससे उसका बदला हो सकता है? दूसरा, ये जो तीनों अदालत हैं, फैजाबाद में अयोध्या के केस चल रहे थे, बनारस में बनारस बम ब्लास्ट के तीनों अदालतों में कभी न कभी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे चले हैं, तो क्या इस वजह से हमला किया तो उसका बदला ले सकते हैं? इसके पीछे कोई भी नियोजन हो सकता है, कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य साफ है कि देश की कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। दूसरी चीज एक साफ है कि सुनियोजित है, क्योंकि एक समय पर 3 शहरों में घटनाएं होना, इससे पता लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से की गई है। आतंकवादी का क्या आप इसको आतंकवादी हत्या कहेंगे? हम ये मानते हैं कि किसी न किसी ऐसे संगठन के द्वारा ये व्यूह रचना रची गई है जो हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। क्या इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। पौने घंटे के अंदर कोई घटना घटी हो, अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस तरह का ब्लास्ट हुआ है, कहां से हुआ है, कैसे हुआ है। अभी कोई भी चीज कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सर, जितनी चीजें साफ है उतनी मैंने आपको बता दी कि सुनियोजित तरीके से किया गया है, क्योंकि एक समय पर 3 शहरों में नहीं हो सकता। सर, इसी महीने आप 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं जो ये कहता है कि एक बड़े नेता को मारने की साजिश है, तो क्या पुलिस को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही उन तीनों आतंकवादियों को पकड़ा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही उस तरह का खुलासा भी किया था। तो हम ये नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई भी कोर कसर बाकी रखी है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम देने में, पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। जो कुछ भी होगा ये बात तो लैप्स कहाँ पे मांगते हैं? लैप्स कहाँ पे हुए? चूक कहीं न कहीं लैप्स तो होती है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है। अब ये तीनों जो शहर है, हालांकि बहुत दूर तो नहीं है, लखनऊ, बनारस और फैजाबाद, लेकिन फिर भी 200, 300 किलोमीटर दूर है। तो कहीं न कहीं लैप्स तो होता ही है, और कहीं न कहीं पुलिस को चकमा देने में आतंकवादी सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जायसवाल जी, अभी हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, अब यहाँ यूपी में 3 शहरों में लगातार हुए। क्या केंद्र सरकार की रणनीति वो नाकाम नहीं हो रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए? इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट बनता जा रहा है। इसी सरकार की रणनीति नाकाम नहीं हो रही है। दरअसल हो ये रहा है कि हमारे देश की प्रगति और देश की तरक्की से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश की तरक्की को हम बाधित केवल इसी तरह से कर सकते हैं कि इस देश की कम्युनल हार्मोनी मजबूती के साथ ऐसे धमाकों का मुकाबला करें। यही आम जनता के पास तो हथियार नहीं होते ना, ये काम तो सरकार का है। आम जनता केवल अपनी एकजुटता से मुकाबला कर सकती है, और उस एकजुटता का कोई तोड़ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि देश की आम जनता एकजुटता के साथ डटी रहे। बाकी काम पुलिस पर छोड़ दिया जाए। थैंक यू सर।